Now it is my privilege to introduce Honorable Jagdish Wandile sir, who has been conducting the classes of English speaking and personality development in Hingangarh town since 22 years. So you might be knowing about him, and it is honor for me to tell that he has written 3 important books, that is English speaking and personality development, words formation, and number 3, how to pronounce correctly. And he is the president of Aadhar Foundation also on the behalf of management and its teachers. Thank you very much, sir, for joining us. And now it is my duty to invite sir to address you on this occasion. Are you enjoying? Yes. So before going to begin the class, we are just clap for 2 minutes so that you get some energy, and then we begin the class. Okay? So first of all, I give. Okay. Raise the voice of your clapping. Very good. Very nice. Very nice. Okay. It's sufficient. It's sufficient. Within 1 hour, I will discuss so many points before you concerned with English language and concerned with some portion of PD. Okay. I would like to ask you some question. Try to give me answer. Then I will begin my task. बताओ बरा. फीड यानी क्या होता है? फीड खिलाना. सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. Feed, fed. It is correct. Okay. Tell me, what is the meaning of find? Okay. Second form, third form. Find, found. Withdraw means what? Second form, third form. Withdraw, withdrew, withdrawn. Okay. You have known most of the word. Okay. How many kind of verb are there? Do you know regular verb, irregular verb? You write D or ED to second form and third form. You get regular verb, okay? And irregular. Do you know irregular verb? You know it. Go, went, gone, eat, ate, eaten, find, found, swim, swam, swum, think, thought, catch, caught, feel, felt, fight, fought. Okay? These are the importance aspect. So I am telling here right now. Okay. तो मैं एक आपको पहले कथा बताऊंगा. आपको उसको गौर से सुनना है. You have to listen so carefully. ठीक है? Name of story is beggar and merchant. Beg means what? Big मांगना. The beggar was roaming in entire city for begging. Beggar was roaming in entire city for begging. Have you known? Which tense is this? For roaming. What is the meaning of this sentence? भिखारी पूरे शहर में भीख के लिए घूमता था. Beggar was roaming in entire city for begging. रोम यानी क्या होता? घूमना. Okay. It was his daily routine. He used to roam entire city for begging. He used to earn tremendous beg from various shopkeepers, from various people who were going on road. And later on, at the end, he used to sit in one particular place, which was in front of the merchant's bungalow. One question was always arising in his mind. देखो, one question was always arising in his mind. What is the meaning of this sentence? एक प्रश्न हमेशा निर्माण होता था. Arise यानी क्या होता? Arise उत्पन्न होना, निर्माण. Second form arose. Third form arisen. One question was always arising in his mind. He was thinking, I am collecting lot of beg from various people, but I daily sit in front of merchant's bungalow. He is one of the richest person in the city. He has a Mercedes bag. He has a big bungalow. He has everything. One day will come, I will meet this merchant and he will give me lot of beg. So I will fulfill my demand. It was his perception. It was his dream. Okay. So he was waiting for long period of time, but he did not get chance. But one day he got a chance. He saw
merchant is coming in his bungalow. He caught merchant. He entered in the premises of bungalow and he said to the merchant, sir, I have been waiting you for a long period of time. I need some beg from you. I am a beggar. I daily sit in front of your bungalow. Yes, really? Do you daily sit? Okay. What kind of beg do you want from me? What is your expectation? Sir, I have one expectation because I have been waiting for you for a long period of time. So I have some expectation. Tell me. Sir, I want 500 rupees beg. He said, I want 500 rupees beg. Only 500 rupees. I can give you 5,000 rupees. But I want piece of your finger. मैं तेरे को 500 नहीं 5,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ. What I want? I want piece of finger. मला तुझ्या बोटाचा तुकडा पाहिजे. Beggar said, Sir, what are you talking with me? It is a important part of my body. How can I give you? Okay, don't worry. I am ready to give you 15,000 rupees. I want your piece of your thumb. I want your thumb. Can you give me? Beggar again said, Sir, what are you talking? I want beg and piece of thumb is an important part of my body. How can I give you? Okay. You can't give. I am ready to give you 2 lakh rupees. I want your one eye. Beggar said, Sir, what are you talking with me? Each and every part of my body is so important. How can I give you? And in such a way, the merchant counted value of each and every part of his body. And finally it went more than million. वो मिलियन के घर में चली गई. इतनी उन्होंने वैल्यू किया कि इट वेंट मोर देन मिलियन. फिर व्यापारी ने बोला, यार तू अपने आप को यू आर टेलिंग मी यू आर अ बेगर. तू मुझे बता रहा है कि तू भिखारी है और साला मैं तेरे पूरे ऑर्गन का कैलकुलेशन लगा रहा हूँ, तेरे को पूछ रहा हूँ, वो तो मिलियन के घर में चली गई, करोड़ों रुपए के घर में चली गई. हाउ कैन यू से यू आर द बेगर? तू कैसे बोलता है तू भिखारी है? तेरे बॉडी की कीमत मिलियन है, मिलियन, और यू आर सेइंग आई एम अ बेगर. इट इज रॉन्ग वन. देख दोस्त, आई एम टेलिंग यू, अगर नेचर ने निसर्ग ने या भगवान ने तेरे को इतना बड़ा शरीर दिया है, यू गॉट अ सच अ प्रेशियस ऑर्गन, और वो मिलियन के घर में है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का एक भी हिस्सा तू मुझे देने के लिए तैयार नहीं है. यू आर नॉट रेडी टू गिव मी सिंगल पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी. यू आर रेडी टू गिव मी सिंगल पार्ट ऑफ योर बॉडी, और तू अपने आप को भिखारी कह रहा है. इट इज अ रेडिकुलस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिकुलस? रेडिकुलस, किड़सवाना. इट इज डिस्गाइजिंग. इट इज रॉन्ग वन. ये गलत है. तो वो मर्चेंट ने उसको बोला, बेटा डोंट डू सच अ रेडिकुलस वर्क. लिसन मी, डोंट डू सच अ डिस्गाइजिंग वर्क. नेचर ने तेरे को इतना बड़ा ब्रेन दिया है, तेरे को हाथ दिया है, पैर दिया है, 2 आंखें दी है, दिमाग दिया है, ईच एंड एवरी ऑर्गन दिया है. तू ये सब कीमती है. ये इतनी बड़ी कीमती प्रॉपर्टी लेके तू भीख काय को मांग रहा है? व्हाई आर यू बेगिंग? You got such a precious property, you are begging. It is a ridiculous thing. Don't do just like this. उस कि सही में यार, मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद अगर मैं मेरे रिस्पेक्ट को खो रहा हूँ, मैं भीख मांग रहा हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ जिसमें कोई मान सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं है, सिर्फ गालियाँ है, तो ऐसा काम आई डोंट वांट टू डू. He got some knowledge from that merchant. He got some lesson from that merchant. और दूसरे दिन से उसने भीख मांगना शायद बंद कर दिया होगा. बराबर है. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें अपने आप को कमजोर ठहराना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास दुनिया का सबसे बड़ी पावरफुल चीज ब्रेन है. अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड? आई एम आस्किंग यू वन क्वेश्चन राइट नाउ. गिव मी आन्सर ऑफ दॅट क्वेश्चन. मला सांगा बरं मित्रांनो, जोर कशामध्ये असते? बरेचसे लोक म्हणतात, सो मेनी पीपल से, माझ्या मनगटात जोर आहे, मी काही करू शकतो. असं ऐकलंय का? ॲक्च्युअली जोर कशामध्ये असते? जोर मनगटात नसते. जोर कुठे असते? आपल्या ब्रेनमध्ये असते. बरं ठीक आहे, पहा, तुम्हाला उडी मारायची आहे, यू वॉन्ट टू जम्प. ओके, तर तुम्ही प्रथम कोणाला विचारता?
यू आस्क योर ब्रेन। पा 3 चीजें होती है। एक होता है तुम्हारा मन, ठीक है, मन यानी इच्छा। मन यानी क्या होता है? इच्छा। मन यानी डिजायर, डिजायर यानी क्या होता है? इच्छा। डिजायरस यानी इच्छुक, दिख रहा है ना आपको। दूसरा होता है तुम्हारा ब्रेन। ब्रेन यानी क्या होता है? ब्रेन यानी दिमाग। दिमाग यानी क्या होता है? समझ। समझ यानी दिमाग, बराबर है। और थर्ड क्या होता है? 1 2। और थर्ड होता है तुम्हारी बॉडी। बॉडी यानी क्या होता है? शरीर। 3 चीजें होती है। अब देखो अपना दिमाग काम कैसे करता है। हाउ कैन योर माइंड वर्क्स, आई एम टेलिंग यू। पहले हमारे मन में इच्छा होती है। समझो तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे मन में पहले इच्छा कैसे होंगी? आपके आजू बाजू में आपने करोड़पति बिजनेसमैन लोग देखे, रोज तुम उसकी बिल्डिंग देख रहे हो, रोज तुम उसकी गाड़ी देख रहे हो, रोज तुम उनका रहना उठना खाना पीना बैठना देख रहे हो। यू आर वॉचिंग देम डेली डेली। आपके मन में एक इच्छा होती है, साला मेरी भी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, माई लाइफ शुड बी जस्ट लाइक दिस। मेरे पास भी लग्जरियस गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा बंगला होना चाहिए, मेरा भी समाज में स्टेटस होना चाहिए, मेरी भी समाज में इज्जत होनी चाहिए, पोजीशन होनी चाहिए। पहले क्या हुआ? आपके मन में इच्छा आई। इच्छा आई ना? वो इच्छा आप किसको बताएंगे? ब्रेन को। क्योंकि देखो ब्रेन दुनिया का कोई भी डिफिकल्ट काम कर सकता है, सिर्फ ब्रेन को चाहिए सिग्नल। ब्रेन नीड्स सिग्नल। जैसे देखो मेरी इच्छा हुई, समझो आई वॉन्ट टू ईट जलेबी, मेरी जलेबी खाने की इच्छा हुई, मैं किसको बताऊंगा? ब्रेन को। इच्छा बताएंगी ब्रेन को, ब्रेन दिमाग लगाएगा। डू यू हैव मनी इन योर पॉकेट? ठीक है, 50 रुपये है। देयर इज 50 रुपी इन माई पॉकेट। अब तुम्हारे पॉकेट में 50-100 ही रहेंगे ना, 50-100-200, क्योंकि माँ बाप उतने देंगे, ठीक है। फिर बोलेंगे मेरे पास साइकिल है क्या, 2 व्हीलर है क्या? नहीं। हाँ, आई कॉल माई फ्रेंड, चल मेरे साथ। फिर वेयर एम आई गेटिंग जिलेबी? डॉक्टर बाबा आम्बेडकर चौक, क्यों? फिर वहाँ जाएंगे आप, फिर आप इच्छा पूरी करेंगे। तो इच्छा मन में आई, ब्रेन ने दिमाग लगाया, पूरी हो गई, बॉडी ने खा लिया उसको, बॉडी में उसको डाइजेस्ट हो गया। आर गेटिंग माई पॉइंट? तो हम लोग गरीब क्यों रहते हैं, हम लोग पीछे क्यों रहते हैं मालूम है? क्योंकि हमारी इच्छाएं छोटी छोटी है। जो आदमी बड़ी इच्छा को पिक्चराइज करता है वो बड़ा बनने के चांसेस में होता है। हम छोटी मोटी इच्छाएं को पिक्चराइज करते हैं हमारे मन में, तो उतनी पूरी होती है। जितनी तुम इच्छा व्यक्त करोगे और उसको पिक्चराइज करेंगे, और हमारे दिमाग को हमें वैसा बनना है बनना है बनना है बनना है, बन पा रहे हैं, हो पा रहा है, कर रहे हैं। डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, डे बाय डे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। ऐसे तुम जब जब जैसे फील करते हो ना, वैसे वैसे तुम्हारा ब्रेन करते रहता है। मैं इस बात को वाकई मानता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने भी मेरे लाइफ में देखा है कि देखो एक साधारण गरीब घर का आदमी, उसके ड्रीम छोटे होते हैं, इसलिए उसकी अचीवमेंट छोटी होती है, क्योंकि वो ब्रेन को छोटी चीजें प्रोवाइड करता है। तो ब्रेन को तुम प्रोवाइड करते हो, वो ब्रेन पूरा करने की ताकत रखता है, बराबर है? समझ में आ रहा क्या? तो पहले तुमको तुम्हारे मन के जो आवाक है, उसको बोलते क्या होते हैं? क्राइटेरिया ऑफ माइंड, क्राइटेरिया ऑफ डिजायर, उसको बदलना पड़ेगा, उसको बड़ा करना पड़ेगा। पहला पॉइंट दिमाग में रखो। अगर आपको जीवन में बड़ा आदमी बनना है तो आपके मन का जो अवाका है, जो क्राइटेरिया है, वो उसको बड़ा करना पड़ेगा। अब तुम्हारे मन में कौन से पॉइंट ऑफ व्यू है, क्राइटेरिया है? किसी को आईएएस, किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को एडवोकेट, किसी को बिजनेसमैन, बराबर है। लेकिन उसमें बहुत से लोग, अपना भारत 80% गरीब है, उसमें भी फिर भी लोग गरीब रहते हैं। इसका कारण है कि अगर तुमने बाय मिस्टेक तुम्हारे मन का क्राइटेरिया बड़ा किया और घर वालों से डिस्कस किया, बे राहू दे, थोडीशी नोकरी पाय, 10-15 हजाराची, विषय मोकळा कर, अगा हुशारी मारू नको, जमाना कठीण आहे, टाइम इज सो टफ, डोंट डेयर, ओके, ठीक है। तो देखो तुम्हारे पास कैसा होता है, 2 माइंड होते हैं, 2 काइंड ऑफ। एक होता है दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड, और एक होता है दोस्तों कॉन्शियस माइंड। डोंट टेक सीरियसली, दुनिया में कोई भी काम को सीरियसली नहीं लेना। एम लगे तो सीरियस रखना, कीप द एम सीरियस। बिना गोल के जीना ही नहीं। दोस्तों देखो, मुझे आई वुड लाइक टू आस्क यू क्वेश्चन, लास्ट पर्सन, कैन यू प्ले फुटबॉल विदाउट गोल? आप फुटबॉल बिना गोल के खेल सकते हो क्या? समझो इधर गोल नहीं है, इधर भी गोल नहीं, वेयर विल यू हिट द बॉल? वेयर विल यू हिट द बॉल? आप बॉल का मारोगे?
मारी नहीं ना, गोल ही नहीं है ना। जैसे तुम फुटबॉल जैसा खेल बिना गोल के खेल नहीं सकते, वैसे तुम जीवन बिना गोल के मत जियो। डोंट लिव द लाइफ विदाउट गोल। दूसरी एक बात मैं बताता हूँ, अपने में से कुछ लोग बाप दादा की प्रॉपर्टी पे जीते हैं, माँ बाप के प्रॉपर्टी पे जीते हैं, और वो बोलता है यार मैं बहुत भाग्यशाली आदमी हूँ। वैसा नहीं है दोस्तों। कामयाब लोग काम होने के बाद कुछ चीज़ें फेंक देते हैं, क्योंकि वो मर जाते हैं ना, वो साथ में लेके जा सकते हैं। अरे कुछ लोग कितनी भी कामयाबी आप हासिल करो, आप वो प्रॉपर्टी को साथ लेके जा सकते हो क्या? तो कुछ कामयाब लोग कामयाब होने के बाद कुछ चीज़ें फेंक देते हैं, रख देते हैं। वो कमज़ोरों को मिलती है। किसको मिलती है? कमज़ोरों को, निकम्मों को मिलती है, और वो बोलते हैं मैं नसीबवान हूँ। एंड दे आर सेइंग आई एम अ लकी पर्सन। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन ये चीज़ मुझे गलत लगती है। अपने बलबूते पर अपन क्या कर सकते हैं? ठीक है, कोई सोर्सेस, कोई रिसोर्सेस अगर आपके माँ बाप ने आपको दिए, उसका सही इस्तेमाल करो, और उससे 10 गुना ज़्यादा समाज में बड़ा कैसा बन सकता है उसके लिए कोशिश करो। क्या करो? कोशिश करो। अब मेरे पहले मुद्दे पे आता हूँ, अभी हम बड़े क्यों नहीं बनते? मेरे पर भी मैं ऑब्जर्वेशन किया कि साला मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो बड़ा तो नाम पूरे देश में होना चाहिए था, मैं एक टॉप का यूट्यूबर होना चाहिए था, मैं टॉप का स्पीकर होना चाहिए था, फिर भी मैं बड़ा क्यों नहीं बन रहा हूँ? ऐसा पहले 15 साल तक मैंने सोचा, यानी पैसा 15 साल तक मैं जीवन जिया, मेहनत किया, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मेरी इच्छा ही छोटी थी, मेरे डिज़ायर ही छोटे थे। मैंने ब्रेन को सिग्नल दिया, मैं होशियार था, ब्रेन ने जितनी इच्छा थी उतना ब्रेन शार्प था, उतना ब्रेन ने काम पूरा करके दिखाया। ब्रेन की कोई गलती नहीं है, देयर इज नो मिस्टेक ऑफ ब्रेन। बराबर है? ब्रेन की कोई गलती है क्या? नहीं। फिर भी मैंने बीच बीच में मेरा सर ऊपर उठाया, आई पीप माई हेड। मेरे माँ बाप को बोला यार ये मुझे पट नहीं रहा, इट इज़ अ स्मॉल थिंग, आई डोंट वांट टू डू। दे सेड मी, अबे हुशारी मारू नको, आपण झोपडीत राहणारे माणसं, गरिबीत राहणारे माणसं, बस 10-15 हजारची मी 5,000 नोकरी केली, पूर्ण कुटुंब चालवलं विथ फुल प्राईड. माय फादर सेड, पूर्ण गर्वानं म्हटलं बापू म्हणे मी 5,000ची नोकरी केली, पूर्ण कुटुंब चालवलं, अजून कोणाचं चाराने उसने नाही घेतले. आय डिडंट बारो सिंगल रुपी फ्रॉम एनीबडी. 10-15 हजारची नोकरी पाय आणि आपलं जीवन चांगलं जग, जास्त मोठे स्वप्न पाहू नको. आणि कळलं का तुम्हाला? कैसा है दोस्तों? देखो, दो अपने ब्रेन में 2 माइंड होते हैं. एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड. जो बचपन से तुम्हारे कॉन्शियस माइंड पे हैम्बरिंग होता है, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में घर करके बैठता है, विच गेट हैमर्स फ्रीक्वेंटली ऑन योर कॉन्शियस माइंड. इट क्रिएट्स अ होम इन योर सबकॉन्शियस माइंड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और जो सबकॉन्शियस माइंड में अंदर तक जाता है वही हमारा जीवन बनता है, वही हमारा जीवन बनता है. मैं लगा तुमको एग्जाम्पल देता हूँ. अपने गुजराती बांधव, अपने मारवाड़ी बांधव, वो कभी गरीब नहीं रह सकते 90% टाइम, क्योंकि उनके कॉन्शियस माइंड में बार बार बिजनेस गया है, बार बार पोजीशन गई है, बार बार रेपुटेशन गया है, बार बार सक्सेस गया है, बचपन से गया है. उन्होंने हमेशा आंखों के सामने गल्ला देखा है, पैसा देखा है, उन्होंने हमेशा आंखों के सामने बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी देखी है, उन्होंने हमेशा आंखों के सामने सक्सेस देखा है. तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में सक्सेस घुस चुका है. वो होशियार रहे नहीं रहे, वो अमीर रहने वाले. तुम होशियार रहो नहीं रहे तो बुरी बात है, रहे तो भी उतने अमीर नहीं रहने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठी नहीं है. क्योंकि माँ बाप ने पहले ही बताया है, बापू अंथरून पांघरून पाय पसरव, जास्त हुशारी मारू नका. दुसरं, जो का गाले जन्मासी तो ना मारे उपासी. मग स्वतःवर विश्वास नको ठेवू ना तू. जो अपने आप पर भरोसा रखता है दुनिया उन पर भरोसा रखती है. कीप इन माइंड, जो अपने आप पर भरोसा रखता है दुनिया उन पर भरोसा रखती है. ठीक है? ओके, वेरी गुड. मराठी में बोल सकता हूँ. झाडाचे पान तुम्ही तोड़ता माहिती है? यू कैन ब्रेक द लीफ ऑफ द ट्री. तोड़ सकते हो, तोड़ना इजी है, जोड़ना बहुत डिफिकल्ट है. समझा? बुरा आदमी बनना इजी है, अच्छा आदमी बनना, ऐसा आदमी बनो कि तुम्हारे फैमिली को तुम पर नाज हो, ऐसा आदमी बनो तुम्हारे टीचर को तुम पर नाज हो,
ऐसा आदमी बनो तुम्हारे गांव को तुम पर नाज हो। ऐसा आदमी बनो कि तुम्हारे देश को तुम पर नाज हो। बराबर है? लगना चाहिए। तुम ऐसी अपनी पर्सनैलिटी बनाओ कि जहां तुम खड़े होते हो वहां से लाइन शुरू होती है। ऐसे पिक्चर के डायलॉग है, डू यू नो? तो वैसा ऐसे हवा में नहीं होगा, ऐसा हवा में नहीं होगा। जब तुम्हारा नेचर, जब तुम्हारा स्वभाव स्टडीज बनेगा तब होगा। और मैंने पहले एक बात डिस्कस की थी, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। अब देखो तुम्हें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना है। तुम्हें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाना है। कैसे बनाओगे? देखो, अभी से तुम मोर देन सिलेबस अवान्तर वाचन करना शुरू कर दो। तुम महापुरुषों की ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ो, तुम्हारे लाइब्रेरी में होंगी। क्यों पढ़ो? देखो, हम लर्निंग क्यों करते हैं? हम किताबें क्यों पढ़ते हैं? किताबें कुछ नहीं होती है। दुनिया में सबसे पहले आता है एक्सपीरियंस, अनुभव, और बाद में आती है किताबें। जो भी तुम्हारे किताबों सिलेबस है वो पुराने लोगों का एक्सपीरियंस है। उन्होंने एक्सपीरियंस को किताब में लिखा है, किताब के तौर पर लिखा है। बराबर है? अगर मुझे बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में जानना है, अभी तो वो मर चुके हैं, मैं उनको मिल नहीं सकता, लेकिन मैं एक माध्यम से उनको मिल सकता हूँ। आई कैन मीट देम विथ पर्टिकुलर मीन। कौन से माध्यम से? मैं उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकता हूँ। जब मैं उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ूंगा, जितने दिन मैं पढ़ूंगा उतने दिन मैं उनके साथ बिता रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा। मैं उनके लाइफ से पढ़ूंगा, उनके एक्सपीरियंस से पढ़ूंगा। अगर मुझे महात्मा गांधी के बारे में जानना है तो मैं उनके लाइफ, उनके साथ 10 दिन 20 दिन बिताऊंगा। कैसे बिताऊंगा? उनकी किताबें पढ़ूंगा। जब मुझे इलॉन मस्क ने बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा किया ये जानना है तो मैं उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ूंगा। जब मुझे धीरूभाई अंबानी कैसा बड़ा आदमी बनाया जानना है तो मैं उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ूंगा। बराबर है? और जब तुम ऐसे महान लोगों के साथ समय बिताते हो, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हो, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हो, रिच डैड पुअर डैड, अब्राहम लिंकन की कुछ किताब, अलग अलग किताबें हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की किताबें हैं। जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हारे मन का जो अवाका है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। मैंने बहुत लेट पढ़ना शुरू किया, अभी अभी बढ़ा है, लेकिन मैं बचपन से आपको बता रहा हूँ। अभी से शुरू करो, राइट फ्रॉम दिस स्टेज। ये एजुकेशन स्कूल का है, ठीक है, स्कूल का एजुकेशन अच्छा है, गवर्नमेंट ने लिमिटेड सिस्टम तैयार की है, लेकिन जिसको दुनिया से हट के बनना है, अलग बनना है, उन्होंने महापुरुषों के 10-12 किताबें या बिजनेसमैन लोगों की 6-7 किताबें। अगर फाइनेंशियल एजुकेशन आपको चाहिए तो रॉबर्ट कियोसाकी पढ़ो, इलॉन मस्क पढ़ो, धीरूइज्म नाम की किताब है धीरूभाई अंबानी की, वो पढ़ो। बराबर है? अलग अलग किताबें, एक से एक किताबें, साइकोलॉजी ऑफ मनी ये पढ़ो। बराबर है? तो उस किताबों से क्या होगा? आपका जो मन है, मन मेन है, मन, ब्रेन मन का नौकर है यार। ब्रेन कुछ भी नहीं है, ब्रेन तुम्हारे मन का नौकर है। अरे तुम्हारे मन में कुछ भी इच्छा हो, ब्रेन पूरा करने वाला है। बराबर है? एक आधी लड़की है, उसका दोस्त अमेरिका में या बॉम्बे में या दिल्ली में रहता है, उसकी तीव्र इच्छा है उसको मिलने की, वो कहाँ से भी पैसे जुटाएंगी, वो कुछ भी करेंगी, लेकिन वो जाएंगी, वो मिलेंगी, क्योंकि मन है। मन ने एक बार तय कर लिया तो ब्रेन उसके लिए तैयार है। समझा गया आपको? सिर्फ तुम्हारे मन को तुम बड़े काम के लिए तैयार करो। मेरा मैसेज तुमको यही है आज कि तुम तुम्हारे मन का अवाका बढ़ाओ, तुम तुम्हारे मन को बड़े काम के लिए तैयार करो। स्टूडेंट शुड बी पोलाइट, स्टूडेंट शुड बी हेल्पफुल, स्टूडेंट शुड बी ओबीडियंट। बराबर है? समझा क्या? लेकिन मुद्दे पे आते हैं। अपना जो मुद्दा है वो पहले महत्वपूर्ण है। तो अपने माँ बाप ने जो पढ़ाया वो हमारे दिमाग में बचपन से क्या गया है? बचपन से खेती, बचपन से वो गरीबी, बचपन से वो पैसे का अभाव, बचपन से वो कंपनी, फैक्ट्री, और बातें कौन सी घर में? नौकरी का, मजूरी का, इसका उसका। बराबर है? फिर दूसरी बात, हमारे बचपन से मन में क्या गई है? देखो, 3 चीजें होते हैं। एक इंग्लिश में वाक्य है। पहला देखो वाक्य, ग्रेट मैन इमेजिन आइडिया, ग्रेट मैन इमेजिन आइडिया, एवरेज मैन डिस्कस पीपल,
और लो कैटेगरी मैन या पर्सन, डिस्प्यूट पीपल, जिसको मान बनना है। पहला तो ये माइंड समझे, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का आपको समझ में आ गया होगा। आपको आपके ब्रेन का, विचारों का, इच्छा का अवाका बढ़ाना पड़ेगा। वो अवाका कैसे बढ़ाना है ये बाद में मैं आखिर में बताऊंगा आपको। आई टेल यू लेटर ऑन हाउ विल यू मल्टीप्लाई यूर माइंडसेट। ओके, तो ग्रेट मैन इमेजिन आइडिया। जिस जीवन में देखो, मैंने जो ऑब्जर्व की हुई बातें हो वो आपको बता रहा हूं। लिसन केयरफुली। कोई भी काम को ऐसा करो कि वो आखिरी बार कर रहे हो। कोई भी स्पीच को ऐसा सुनो वो आखिरी बार सुन रहे हो। बराबर है? तो ग्रेट मैन इमेजिन आइडिया। जिस आदमी को जीवन में बहुत बड़ा होना होता है वो हमेशा उसका फोकस अपने बड़े बड़े आइडिया पे होता है, बड़े बड़े प्लानिंग पे होता है। वो सिर्फ अपने आइडिया के लिए काम करता है, वो सिर्फ अपने इमेजिनेशन के लिए काम करता है। इमेजिनेशन किसको बोलते हैं? तुमको क्लास 1 ऑफिसर बनना है, कलेक्टर बनना है, तुम इमेजिन क्या करोगे? बड़ा ऑफिस, बड़ी कैबिन, बराबर है? लोग समस्या लेके आ रहे हैं, 2 असिस्टेंट, बड़े बड़े आला लोग उसके मेरे सामने खड़े हो रहे हैं। मैं गांव की समस्या को सॉल्व कर रहा हूँ, मैं जिले की समस्या को सॉल्व कर रहा हूँ, मेरे गाड़ी पे लाल दिया है ना, देयर इज रेड लाइट ऑन माई 4 व्हीलर। तो ये तुम जो इमेजिन करते हो, इमेजिनेशन के पीछे दौड़ो। आपने इमेजिन किया होगा, किसी ने साइंटिस्ट का इमेजिन किया होगा, किसी ने डॉक्टर बनने का इमेजिन किया होगा, किसी ने पॉलिटिशियन बनने का इमेजिन किया होगा, किसी ने उद्योगपति बनने का इमेजिन किया होगा। उसके पीछे दौड़ो। ग्रेट मैन इमेजिन आइडिया। लेकिन होता क्या है, लोग पीछे क्यों रहते हैं? क्योंकि तुम एक एनर्जी हो। जिस जगह तुम अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करोगे, जिस जगह तुम एनर्जी को अप्लाई करेंगे, उस जगह से रिजल्ट निकलेगा। तुम्हारा पूरा शरीर, तुम्हारा पूरा मन एक एनर्जी है। अगर तुम्हारी एनर्जी, तुमने एवरेज मैन क्या करता है? अपने भारत में 80% लोग एवरेज है। वो क्या करते हैं? डिस्कस पीपल। डिस्कस कैसे करते हैं? बाई मुली असं ते माझी मैत्रीण आहे, लगेच शायनी आहे. सी इज व्हेरी वाईज गर्ल, सी इज इगोइस्ट गर्ल. तो म्हणजे माझ्या मामानं नाही का गलत काम केलं. माय अंकल डीड रॉंग वर्क. तो माझा तो 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 तिकडला घरचा मुलगा आहे ना, तो एकदमच शायना आहे. म्हणजे याच्याबद्दल चुकल्या, त्याच्याबद्दल चुकल्या, याच्याबद्दल डिस्कशन, त्याच्याबद्दल डिस्कशन, कामावर लक्ष कमी. आणि तुम्हाला जर एखादी स्पर्धा जिंकायची असेल तर यू डोंट वांट टू मल्टीप्लाई योर स्ट्रेंथ. अपनी स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाते लोग, दूसरों के स्ट्रेंथ को घटाने की कोशिश करते. दे ट्राई टू रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ अदर पीपल. दे डोंट वांट टू इंक्रीज देयर ओन स्ट्रेंथ. लोग क्या करते हैं? अपने स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाते. देखो, आपको बड़ा बनना है तो आपके लकीर पूरे लंबे खींचो, दूसरों की लकीर इतने उतने रहने दो, उसको रिड्यूस मत करो, उससे कॉम्पीट मत करो. तुम अपने आप को बढ़ाओ, तुम अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाओ. पहले अपने आप पर भरोसा रखो, पहली बात. लेकिन भरोसे में 2 चीजें है, एक कॉन्फिडेंट गारंटी और एक है ओवर कॉन्फिडेंट. बराबर है ना? जैसे हमको चीज मैं करके देखता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मैं बेस्ट ट्राई करता हूँ, ये हो गया कॉन्फिडेंट आदमी. और सिर्फ मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, अबे तेरे को नहीं आता, मेरे को आता है. बराबर है? वो हो गया ओवर कॉन्फिडेंट. बराबर है? वो सिर्फ इसके बारे में चुग लिया, उसके बारे में चुग लिया, इसकी बात, उसकी बात, इसके बारे में बोलना, उसके बारे में बोलना. तो एवरेज पीपल हमेशा लोगों को डिस्कस करते हैं. वो हमेशा आइडिया के पीछे नहीं दौड़ते, वो हमेशा प्लान के पीछे नहीं दौड़ते, वो हमेशा सक्सेस के पीछे नहीं दौड़ते. वो डिस्कस करते रहते हैं. काम कम, बातें ज़्यादा करते रहते हैं. सक्सेस के बारे में कम सोचते हैं और काड़िया करके खूबियाँ बारीक बारीक रॉन्ग चीज़ें निकालते रहते हैं. उसको अगर कोई बड़ा काम दिया तसं नाही होत बापू, तुला माहीत नाही, बहुत कठीण काम आहे, जमाना मोठा कठीण आहे, तुला कळत नाही, तुला वाटते होते म्हणून. पण आमचा अनुभव का फुकट आहे का? आम्ही एवढे सिनियर फुकट बनलो का? झालं डिस्करेज. म्हणजे ॲव्हरेज पीपल डिस्कस पीपल. कम से कम फिर भी वो एवरेज होते हैं, इसलिए जीते हैं. दे आर द एवरेज पीपल, सो दे लिव द लाइफ. थोड़े अच्छी दे लिव वेरी हैप्पी लाइफ, नो इश्यू एट ऑल. बराबर है? फिर तीसरी कैटेगरी होती है. तुम देखो, मैं जो बता रहा हूँ ना, उस मेरे बोलने के साथ यू हैव टू रिलेट योर सेल्फ विथ योर लाइफ. मैं जो बातें बताऊंगा वो बातें रहेंगी, आपको वो अपने जीवन के साथ रिलेट करना है.
आपको अपने जीवन को टच करना है, उस बातों को लेकर फील करना है कि मैं कौन से कैटेगरी में आता हूँ, मेरे साथ क्या हो सकता है, इन कमिंग फ्यूचर व्हाट कैन आई डू, इसको रिलेट करना है। मेरी बातें सुनना नहीं है, उसको रिलेट करना है। समझ में आ रहा है आपको? और सुनने की मेंटेन रखो। सुनने की लर्निंग इज द बेस्ट पॉलिसी इन द लाइफ। आदमी ने मरते दम तक पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, क्योंकि नेचर भी ऐसी चीज़ है, उसने अपने को सुनने के लिए 2 कान दिए हैं और बोलने के लिए सिर्फ 1 माउथ दिया है। और मैंने बोला है कि कम्युनिकेशन स्किल इज वन ऑफ द स्किल इन द वर्ल्ड। यही स्किल सिर्फ इंसानों के पास है, जानवरों के पास नहीं है। डॉल्फिन नाम का फिश है, उसका ब्रेन सेकंड टू अस है, हमसे सेकंड है और हमारे नीचे है, लेकिन उसने दुनिया पे राज नहीं किया। दुनिया पे राज हम ही कर रहे हैं, क्योंकि हमने लैंग्वेज डेवलप की, हमने कम्युनिकेशन स्किल डेवलप किया। और राइट फ्रॉम दिस 200 ईयर्स, ये 200 साल से हमने बहुत ज़्यादा प्रगति की है। वी डेवलप्ड अ लॉट। क्योंकि ये मालूम है, क्योंकि 2 साल से दुनिया में एक भाषा है आगे, जो पूरी वर्ल्ड वाइड है, जो यूनिवर्सल है, जो ग्लोबल है। वो कौन सी है? इंग्लिश। इंग्लिश भाषा से पूरा दुनिया एक छोटा सा खेड़ा बन चुकी है। एक इंग्लिश और एक एरोप्लेन। क्योंकि प्लेन जैसे हिगन घाट से नागपुर पहुंचने के लिए 2 घंटे लगते हैं, वैसे नागपुर से प्लेन से मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और चाइना पहुंचने के लिए 2-2.5 घंटे लगते हैं। याद रखना, इतना डिस्टेंस स्मॉल हुआ है। और ये स्मॉल डिस्टेंस होने के कारण 2 है, एक इंग्लिश लैंग्वेज और एक टेक्नोलॉजी। लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी बोथ थिंग मेड द डिस्टेंस स्मॉल। इसलिए अब आपको अपने गांव के बारे में सोचना नहीं है, नहीं तो अपने गांव के बारे में सोचना अरे अपनी माइंड मेंटेलिटी इतनी लो है दोस्तों कि हम सिर्फ अपने क्लास के बारे में सोचते हैं। कौन से? एक रामा होता है, रामा के बाद में नहीं हमेशा श्यामा बैठता है। रामा सोचता है श्यामा का पहला नंबर कैसे आया, श्यामा सोचता है रामा का पहला नंबर कैसे आया। बस वो अपने क्लास तक ही स्पर्धा करता है, वो भूल जाता है कि पूरी दुनिया है। आर गेटिंग माय पॉइंट? और आपको इसलिए नहीं सुनना है रामा श्यामा के लिए, आपको पूरे दुनिया का अंदाज लेके अपने को डेवलप करना है, अपने पर्सनैलिटी को डिजाइन करना है। क्योंकि आज इस दुनिया में तुम्हारा टैलेंट ही सब कुछ है। यू आर द पर्सनैलिटी। तुम बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो। बड़ा कीप इन माइंड, यू आर द बिगेस्ट प्रॉपर्टी। तुम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हो, अगर तुमने अपने आप पर प्रॉपर इन्वेस्ट किया, प्रॉपर एजुकेशन लिया, प्रॉपर लर्निंग टेक्नोलॉजी डेवलप किया, तो आप दुनिया में कितना भी महान बन सकते हो। और एग्जाम्पल है, चाय बेचने वाला नरेंद्र मोदी एग्जाम्पल है। उसने ज़्यादा प्रॉपर्टी लेने पे खर्च नहीं किया, उसने अपने आप पर ज़्यादा खर्च किया, अपने टैलेंट पे ज़्यादा खर्च किया, संगठन बनाने में ज़्यादा खर्च किया। उसने अपने ब्रेन को, अपने माइंडसेट को, अपने टैलेंट को ऐसा डेवलप किया कि वो प्रधानमंत्री बना। सुंदर पिचाई, शाहरुख खान कुछ भी नहीं थे पहले, उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ी प्रॉपर्टी समझा, उस पर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्ट किया। अपने आप को हर समय एक स्टूडेंट रखा और हर नई चीज़ों को लर्न करते गए। वो आज महान लोग हैं। समझा आपको? और ये चीज़ों में ऑब्स्टेकल आता है, कौन सा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक एवरेज पीपल, डिस्कस पीपल, ये आपको पॉइंट समझाऊंगा। सिर्फ इसके उसके बारे में चर्चा करते रहना, इसकी उसकी चुगलियाँ करते रहना, टाइम पास करते रहना, इसलिए वो एवरेज रहते हैं। ठीक है? लेकिन थोड़ा बहुत काम भी करते हैं, 2-4 घंटे चुगलियाँ करते हैं, इसकी उसकी बातें करते हैं, इसका उसका कूड़ा निकालते हैं, लेकिन 6-7 घंटे 8 घंटे काम भी करते हैं। और काम में भी घर की बातें करते हैं, इधर की उधर की बातें करते हैं। तो वो हो गए एवरेज पीपल। वो फिर काम में एक बार मिशन पे चढ़ गए तो मिशन की बातें नहीं करेंगे, वो भी घर की बातें करेंगे। जब तुम मिशन पे आ गए हो तो बातें किसकी करो? मिशन की करो। अंदर बहुत बड़ी शक्ति होना, बहुत बड़ा रेबेलियस पर्सन होना, बंडो को होना, लेकिन बाहर से पूरा शांत दिखने को होना। और शांति से बाय प्लान, जैसे बिना गोल के हम फुटबॉल नहीं खेल सकते, वैसे बिना गोल के जिंदगी नहीं जी सकते, वैसे बिना प्लान, बिना स्ट्रैटेजी, बिना स्टडी किए हुए हम बड़ा भी नहीं बन सकते। दुनिया में जितने भी लोग बड़े बने हैं ना, उनके पास प्लान था, स्टडी था, स्ट्रैटेजी थी, काम करने की मेथोडोलॉजी थी। उन्होंने हर चीज़ को अंडरस्टैंड किया था, जीवन को, इसलिए वो बड़े बन पाए। याद रखना। समझ में आया क्या मुद्दा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये पॉइंट समझेगा। इसलिए आज से अपने जीवन में बड़ा प्लान रखो और हमेशा ग्रेट मैन जैसे रहो। हमेशा बड़े बड़े आइडिया के बारे में सोचते रहो, बड़े बड़े चीज़ों के बारे में सोचते रहो। ठीक है? अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। एक मुद्दा देखो, यू आर
ऑलवेज स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम इन द स्कूल? आर यू स्पेंडिंग? जितना देखो, तुम्हारा पहला गुरु होती है तुम्हारी माँ, योर मदर इज योर फर्स्ट प्रिसेप्टर। तुम्हारा सेकंड गुरु होता है तुम्हारे पिता, लेकिन तुम्हारा थर्ड सबसे महत्वपूर्ण गुरु होता है तुम्हारा टीचर। क्योंकि जितना समय तुम तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं बिताते हो, उतना ज़्यादा समय तुम टीचर के साथ बिताते हो। कैसे? आई एम टेलिंग यू, इफ आई एम राइट, अगर मैं सही हूँ, आप सवेरे 7:30 बजे क्लास आते हो या 8 बजे आते होंगे, आई डोंट नो अबाउट दिस क्लास, कौन से बजे? हाँ, 9 बजे आते होंगे, ठीक है। बाद में तुम 4 बजे 5 बजे घर जाते होंगे, या 3 o'clock, यानी 9 से 3 कितने हो गए? 6 घंटे। बाद में तुम 6 घंटे तुमने टीचर के प्रीमाइसेस में, टीचर के टीचिंग स्किल के क्षेत्र में या उनके क्राइटेरिया एरिया में टाइम बिताया है। सेकंड, फिर तुम घर जाने के बाद, खाना खाने के बाद 2 घंटे 1 घंटा ट्यूशन पे जाते हो, यानी वो 6 घंटे प्लस 2 घंटे ट्यूशन। बाद में तुम 3-4 घंटे पढ़ाई करते हो, यानी तुम दिन में 10 घंटे तुम एजुकेशन के पीछे, टीचर के पीछे, टीचर के सोच के पीछे, टीचर के टीचिंग के पीछे, सिलेबस के पीछे दौड़ते हो। एम आई रॉन्ग? तो तुम्हारा तीसरा गुरु टीचर है। आर गेटिंग माय पॉइंट? कुछ लोग क्या होते हैं मालूम है? डिस्कस नहीं करते, इसकी उसकी चुगलियां नहीं करते। उसने ऐसा बोला क्या? ऐसा बोला? सही में बोला? सही में बोला क्या? चल उसको मारते, चल उसको अपन दिखा देते अपन क्या है। वो अपना ईगो जागृत करता है, अपने ताकत को जागृत करता है, वो डायरेक्ट झगड़ा करने जाता है। यानी वो लोग डिस्प्यूटेबल पीपल होते हैं, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते बड़ा काम। उनके पीछे जिम्मेदारी है जनरेशन को डिजाइन करने की। हमारा देश स्टूडेंट का देश है, हमारा देश यंग लोगों का देश है। हमारे देश में 65% तरुण लोग हैं। अमेरिका में सिर्फ 35% है, चाइना में सिर्फ 29% है, जापान में सिर्फ 32% है। लेकिन हमारा एकमेव देश है जहाँ 65% यंग लोग रहते हैं। हमारे भारत के स्कूल में, हर स्कूल में क्राउड है, मालूम है? देयर इज अ क्राउड इन ईच एंड एवरी स्कूल ऑफ इंडिया, बराबर है। इतना होने के बावजूद भी हमारा भारत दुनिया में बहुत पीछे है। इसका कारण है दोस्तों, इसका कारण है कि टीचर ने भी अभी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। टीचर ने ओरिजिनल टीचर बन के पढ़ाना है। टीचर ने ऐसा दिखने को ना कि चलते समय, उठते समय, बैठते समय, जाते समय, आते समय वो टीचर लगना चाहिए। क्योंकि टीचर एक इतना बड़ा पद है, जैसे स्टूडेंट एक बड़ा पद है। स्टूडेंट उसको बोलते हैं जो पढ़ाई करके आता है, स्टूडेंट उसको बोलते हैं जो आदर्श होता है, जिसको टीचर भी सलाम करता है मन में। एक अच्छा टीचर एक अच्छे स्टूडेंट को मन में सलाम करता है, उसको लगता है बहुत बेस्ट स्टूडेंट है, ये आगे जिंदगी में कुछ बन सकता है, बराबर है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, टीचर को ही लगता है कि यार ये स्कूल में फालतू है, इसके कारण बहुत अड़चन जा रही है। ये एक स्टूडेंट है लेकिन पूरे स्कूल को स्पॉइल कर रहा है, बराबर है। पहले वो टीचर को लग रहा है, बाद में तुम्हारे घर वालों को लगता है, बाद में तुम्हारे वार्ड वालों को लगता है, बाद में पूरे गांव को लगता है। ये होता है बरा। और बुरा बनने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन अच्छा बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तुम तुम्हारे सीनियर का, तुम तुम्हारे टीचर का हमेशा रिस्पेक्ट करो, नम्रता से रहो। एक अच्छा विद्यार्थी साधारण टीचर से भी ज़्यादा पढ़ता है, बराबर है। और उसकी नम्रता, उसकी विवेकशीलता, उसकी प्रामाणिकता, उसका बहुत बड़ा एक नेचर होता है, बराबर है। इसलिए दोस्तों, टीचर कैसा है? टीचर एक अलग प्राणी है। वो क्या करता है? अक्षर तुम्हें सिखाता है, शब्द का अर्थ तुम्हें बताता है, बराबर है। कभी प्यार से, कभी डांट से आपको जीवन जीना सिखाता है, बराबर है। इसलिए टीचर का रिस्पेक्ट करो, बराबर है। दूसरा मुद्दा, शिक्षक ऐसा प्राणी है इस भूतला पे जो हजारों पीढ़ियां डिजाइन कर रहा है। यहाँ से 200 साल पहले हमारे वर्ल्ड में ऐसे स्कूलें नहीं थी, इतनी ज़्यादा स्कूल नहीं थी पूरे वर्ल्ड में। जब 200 साल से जब दुनिया में क्रांति आई, तब ऐसी बड़े पैमाने पे स्कूलें बनी।
और जब से पूरे दुनिया में ऐसे स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन बने तब से सबसे निचले टप्पे का आदमी भी बड़ा बन रहा है, बराबर है। से एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वरम में खेड़े में रहते थे, वो भारत के राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन बने। क्यों बने? क्योंकि स्कूल उन तक पहुंची, टीचर उन तक पहुंचे। टीचर की बहुत बड़ा महत्व है तुम्हारे लाइफ में। लेकिन एक अच्छा विद्यार्थी ज्यादा तब पढ़ पाता है जब वो टीचर का रिस्पेक्ट करता है, कभी भी याद रखना। इसलिए टीचर के बारे में कहा जाता है टीचर जीने की कला सिखाते हैं, टीचर तुम्हें ज्ञान की कीमत बताते हैं। और सिर्फ किताबों से कुछ नहीं होता, टीचर अपने मेहनत से वो किताबों में क्या लिखा हुआ है ये तुम्हें बताते हैं। तब जाके तुम अपने आप को उस पॉइंट ऑफ व्यू से धीरे धीरे डिजाइन करते हो। पहले मैं तुमको तुम्हारे लाइफ में टाइम का महत्व बताऊंगा। टाइम का महत्व क्या है? क्योंकि तुम स्टूडेंट हो, तुम्हारे लिए समय बहुत मूल्यवान है। तो ऐसे स्टूडेंट रहे या टीचर रहे, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है वो है समय। आदमी अपने आप को मैनेज कर सकता है, मैन कैन मैनेज हिमसेल्फ हरसेल्फ, लेकिन मैन कांट मैनेज टाइम। टाइम सबको सरीका मिला है, बराबर है। टाइम के बारे में अगर आप प्रॉपरली सोचते हो, इफ यू थिंक प्रॉपरली अबाउट द टाइम, तो एक होता है अर्जेंट वर्क, एक होता है इंपॉर्टेंट वर्क। अर्जेंट यानी शीघ्र, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण। एक होता है, सेकंड ब्लॉक बताऊं मैं, इंपॉर्टेंट वर्क बट नॉट अर्जेंट। देखो कौन लोग प्रगति करते हैं, आई एम टॉकिंग हियर हु वन कैन डू द प्रोग्रेस। तीसरा होता है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। मैं आपको ये बता रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ वन थिंग, वेयर शुड यू स्पेंड योर टाइम। और चौथा होता है नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो स्कूल आना अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई करना अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है। रोज सवेरे उठना अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है। बीमार हो गए, दवाखाने में जाना अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो तुम किताबें पढ़ते हो आउट ऑफ सिलेबस, तुम ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, क्योंकि उसके बेस पर तुम्हारे एग्जाम में आने वाला नहीं है। अर्जेंट नहीं है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। सब समझो मैं किताब लिख रहा हूं, मुझे मालूम है किताब लिखने के लिए मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, वो अर्जेंट नहीं है। लेकिन किताब लिखने के बाद मैं एक महान लेखक बन सकता हूं और दुनिया मुझे चाह सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। रोज एक्सरसाइज करना, नो वन से यू डू द एक्सरसाइज डेली, नो वन से यू डू द योगा डेली। आपको व्यायाम करना को डेली करो, कोई बताता नहीं, योगा करो कोई बताता नहीं। अर्जेंट नहीं है लेकिन जीवन के लिए कैसा है, इंपॉर्टेंट है। दुनिया में जो लोग महान बने दोस्तों, ये ब्लॉक के लोग बने हैं। जो काम अर्जेंट नहीं था लेकिन जीवन के लिए कैसा था, इंपॉर्टेंट था। मैं दिन भर नहीं क्या ये किताब वो किताब पढ़ते रहता था। मेरी आर्थिक परिस्थिति बहुत बुरी थी, मैं अर्निंग और लर्निंग करता था, तो फिर ये किताब वो किताब बहुत सी किताब पढ़ता था। सवेरे 2 घंटे की ट्यूशन लेता था। फिर मेरे मन में दिमाग में एक चीज़ आई, मैं तो खाली तो रहता हूँ, मैं दिन भर पढ़ते रहता हूँ, क्यों ना किताब लिखना शुरू करूँ, नोट्स बनाना शुरू करूँ, पॉइंट्स निकालना शुरू किया। मैंने शुरू किया, मैंने इंग्लिश में पहला किताब लिखा। एक लिखा इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये किताब लिखा। आई हैड बीन कंडक्टिंग ट्यूशन, मुझे ट्यूशन लेते आ रहा था। हैड बीन प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। फिर ने क्या, सवेरे 3 घंटे पढ़ाना था, शाम को 2-3 घंटे पढ़ाना था, बाकी का समय में बहुत खाली था। तो फिर मैंने दूसरी किताबें लिखना शुरू किया। कुछ समय बाद तीसरी किताबें लिखना शुरू किया। कुछ समय बीच में मैंने बिजनेस के बारे में किताबें पढ़ी, प्लॉट, रियल इस्टेट, लेआउट, उसके बारे में। उस किताबों का फायदा ये हुआ मेरे को, देखो मेरा वो काम मुझे मालूम था अर्जेंट नहीं है। मेरे माँ बाप ने नहीं बोला था मुझे करने के लिए, मेरे वार्ड वालों ने नहीं बोला था, मेरे रिलेटिव ने नहीं बोला था, मेरे गांव के लोगों ने नहीं बोला था। मुझे लगा कि ये वर्क काम अर्जेंट नहीं है लेकिन जीवन में बहुत भविष्य में फायदा दे सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो उसका मेरे को फायदा ये हुआ दोस्तों, ये कम से कम 40,000 किताबें मार्केट में सोल्ड हुई। उस 40,000 किताबों में लाखों में मुझे फायदा हुआ। उसका भी यही फायदा हुआ
दूसरा बात, मेरी बैचेस ज़्यादा बड़ी, क्राउड तैयार हुआ, वो अलग बात है। और तीसरी भी किताब लिखा, उसका भी वही फायदा हुआ। देखो, वो काम अर्जेंट नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट था। अब मेरी एज 43 है, थोड़ा बहुत मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ। कोई बताता नहीं है कि एक्सरसाइज करो, लेकिन अर्जेंट नहीं है, लेकिन कैसा है, इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि तुम अवान्तर वाचन करो, आउट ऑफ सिलेबस किताबें पढ़ो, आउट ऑफ सिलेबस भाषण, दुनिया के तमाम होशियार लोगों के भाषण सुनो, आउट ऑफ सिलेबस बिजनेसमैन लोगों की स्पीचेस सुनो। गेम पे स्पेंड मत करो टाइम। तुम बहुत से लोग अलग अलग प्रकार के मोबाइल पे गेम खेलते हैं और अपने कीमती समय को गवाते हैं। जो काम तुम्हारे उद्दिष्ट को पूरा करने के लिए पूरक है, वही काम पे समय बिताओ। बराबर है? जो उद्दिष्ट आपने तय किया है और उद्दिष्टों को पूरा करने के लिए जो जो काम आप कर सकते हो, उसके लिए समय दो। तीसरा होता है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। कल दोस्त का बर्थडे है, मुझे मालूम है उसका बर्थडे कल है, कल के बाद परसों नहीं आने वाला है, अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट नाउ इन रिसेंट टाइम पीरियड अभी इतना फैड आ गया है, इसका बर्थडे मनाओ, उसका बर्थडे मनाओ, उसका बर्थडे मनाओ, पूरा कीमती समय उसमें ही जा रहा है। और बर्थडे रहता है अर्जेंट, लेकिन उसमें अपना कितना कीमती समय कंज्यूम हो रहा है वो कोई सोच नहीं रहा। जो समय नेचर ने हमें कुछ क्रिएटिव करने के लिए दिया है, कुछ ऐसा करने के लिए दिया है जिससे दुनिया का फायदा हो, फैमिली का फायदा हो, गांव का फायदा हो, उसके वो काम छोड़ के सिर्फ बर्थडे मनाओ, शादियां मनाओ, इसके घर में जाओ, उसके घर में जाओ, ये कार्यक्रम करो, वो कार्यक्रम करो। अपना भारत गरीब क्यों मालूम है? क्योंकि भारत का मैक्सिमम समय शादी में जा रहा है, उपास तापास में जा रहा है, एकादश पूर्णिमा गुरु अमकड़ के उत्सव रहते हैं उसमें जा रहा है। दे आर स्पेंडिंग देयर टू मच टाइम। ओके, और अभी नया फैड आया है बर्थडे का, उसमें तो बहुत समय जा रहा है। बराबर है? और ये सब काम कैसे अर्जेंट वाले हैं, लेकिन जीवन में कुछ अमूलाग्र बदल लाने वाले नहीं है। जब तुम गरीब रहते हो ना, लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं। और तुम गरीब क्यों रहते हो मालूम है? क्योंकि तुम कीमती समय का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते हो। बराबर है? शिवाजी महाराज क्यों बने? डीपी आम्बेडकर क्यों बने? महात्मा गांधी क्यों बने मालूम है? दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं समय बिताते समय। एक होते हैं नॉर्मल पीपल, एक होता है अबो नॉर्मल पीपल, और एक होता है एवरेज पीपल, लो कैटेगरी पीपल बोल सकते हैं। जो नॉर्मल होते हैं वो नॉर्मल तरीके से समय बिताते हैं। हाँ ठीक है, 10th करना है 10th करेंगे, 12th करना है 12th करेंगे, ठीक है, बीए करना है बीए करेंगे, बीएससी करना है बीएससी करेंगे। वो बीए करते समय ना कंप्यूटर पे कमांड लेते हैं, ना बीए करते समय ना इंग्लिश लैंग्वेज जैसी लैंग्वेज है वो पढ़ते हैं, ना भाषण कला पढ़ते हैं, ना स्टेज डेयरिंग पढ़ते हैं, ना टीचिंग स्किल पढ़ते हैं, ना प्रेजेंटेशन स्किल पढ़ते हैं, ना डेमो स्किल पढ़ते हैं, या कोई डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल नहीं पढ़ते, सिर्फ रूटीन के साथ काम करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल लोग होते हैं, वो पेट को पालने के लिए जीते हैं। एक होते अबो नॉर्मल, महात्मा गांधी, शिवाजी राजे, बाबा साहब अम्बेडकर, वो हर काम मिशन की तरह करते हैं। वो गाड़ी में बैठते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट लेके बैठते हैं, वो जेल में जाते हैं, दे गो इन जेल। देखो तिलक जेल में गए, उन्होंने गीता रोशन का किताब लिखा, उन्होंने जेल का भी समय नहीं छोड़ा, वहाँ भी उसने कुछ ना कुछ लिखा पढ़ी किया। कुछ लोगों ने तो जेल में रहकर क्रांति, नेल्सन मंडेला कितने तो साल जेल में रही, उसने जेल में क्रांति किया। जेल में पूरा मटेरियल लिखती थी, विचार लिखती थी, विचार दुनिया लोगों में पहुंचाती थी, उस विचारों से क्रांति होती थी। बराबर है? कुछ लोगों ने एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का प्रॉपर यूज लिया है, इसलिए वो महान बने हैं। क्योंकि समय ही जीवन है दोस्तों, टाइम इज लाइफ। अगर तुम जीवन में समय को छोड़ दो तो कुछ नहीं बचता। समझ में आ रहा है क्या आपको? बराबर है? तो नॉर्मल लोग क्या करते हैं? सवेरे आराम से उठना, 7-8 बजे खाना खाना, दिन भर छोटे मोटे काम करना, सो जाना। ये लोग मिशन की तरह काम करते हैं। देखो मैं बताता हूँ, हमारा समझो 60 साल का लाइफ है। कितने साल का लाइफ है? 60 साल। अब 24 घंटे का दिन है, होल डे इज फॉर 24 आवर्स है। उसमें से 8 घंटे लोग हम सोते हैं। 8 × 3 कितना हो गया? 24। तो अगर हम 8 घंटे रोज सोते हैं
तो हम 20 साल सोते हैं। हमारे 20 साल किस में गए? देखो 20 इंटू 3 कितना हो गया? 20। तो 8 इंटू 3 कितना हो गया? 24 बराबर है। तो 20 साल किस में गए हमारे? सोने में। अब कितने साल बचे हैं? 40 साल बचे। देखो मैं जो बातें बताऊंगा मैं लिख के देता हूँ, दूसरा नहीं बताएंगा, इसलिए अच्छा सुनो और आखिरी बार सुन रहे ऐसा सुनो, लिसन केयरफुली, बराबर है। अब 40 साल बचे, ठीक है। 40 साल में तुमको पहले 15 साल या 18 साल, मैं 15 पकड़ूंगा, तुमको बड़ा होने के लिए लगते हैं। तुम्हारी हाइट, हेल्थ, ऊंची, अनुभव, तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा शार्पनेस बनने के लिए 15 साल लगते हैं। क्योंकि 15 साल हमारे देश में तो जब जापान के लड़के मोबाइल बनाते हैं तब हमारे लड़के मोबाइल को तोड़ना सीखते हैं। इतने लेट करंट हम लोग है, ये मानना पड़ेगा हमको। आज भी हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है। हमारे लड़के वो गेम बनाते हैं, वो गेम खेलने में हम माहिर है। वो पैसा कमाने के लिए गेम बनाते हैं। पिक्चर का हीरो पैसा कमाने के लिए एक्टिंग करता है और हम पिक्चर देख देख के समय बर्बाद करते हैं, बराबर है। सचिन तेंदुलकर है ना, सचिन तेंदुलकर पैसे गिनता है और हम उसके रन गिनते हैं। रिकॉर्ड हमारे पास, पैसे का रिकॉर्ड उसके पास, उसका रिकॉर्ड हमारे पास और पैसे का रिकॉर्ड उसके पास, बराबर है। शाहरुख खान क्यों रोता है? क्योंकि उसको पिक्चर में एक्टिंग करने के पैसे मिलते हैं। और हम क्यों रोते हैं? हम इमोशनल होते हैं। हमको लगता है, हमको देखो रियल लाइफ में हमारे आजू बाजू में क्या चल रहा है उसके बारे में दुख नहीं है। हमारा बाप दिन भर खेती में काम कर रहा है, रोज के रन निकाल रहा है, उसका दुख हमें नहीं है। लेकिन हमें शाहरुख खान यार पिक्चर में गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो एक्टिंग कर रहा है, वो रियल नहीं है, उसका दुख हमें है। लेकिन हमारे माँ बाप का दुख हमें नहीं है। ये वास्तव है दोस्तों, इट इज़ अ फैक्ट। मैं आपका देखो, जीवन में 3 चीज़ें आपकी लाइफ बदल सकती है। एक तुम्हारी फिलोसॉफी, एक है तर्क ज्ञान, एक है तत्व ज्ञान, एक लॉजिकल एजुकेशन, एक फिलोसॉफिकल एजुकेशन, ये 2 चीज़ें हैं, और एक इंग्लिश भाषा पे कमांड। ये 3 चीज़ें हैं, आपका जीवन बदल सकती है। क्योंकि फिलोसॉफी आदमी को जीवन जीने का तरीका बताती है। तर्क ज्ञान आदमी को फ्यूचर में क्या करने का है उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर करता है, बराबर है। तो हमारे पास 40 में से कितने साल बचे? 15 साल अपने बड़े होने में गए, मैच्योर बनने में गए, जीवन का एम ढूंढने में गए, ठीक है ना। हमारे देश में इतने ऐसे भी लोग हैं जिसके उम्र 35 साल हुई है लेकिन उनको उनका जीवन का एम नहीं मालूम है, वैसे हवा में जी रहे, खाना आ रहा है, खाना खा रहे हैं, जी रहे हैं कुछ। लेकिन 15 साल तो कम से कम लगते हैं कि हमें, हमारा 15 साल गए बड़ा होने में, 40 में से 15 गए, कितने बचे? 25 बचे। अब हम हर आदमी को जीवन में कुछ कर दिखाने के लिए 25 साल एवरेजली मिलते हैं, सब निकाल के। वही समय शिवाजी राजे को मिला, बाबा साहब अम्बेडकर को मिला, अब्राहम लिंकन को मिला, धीरूभाई अंबानी को मिला। वही समय हमें मिल रहा है, वही समय तुम्हें मिल रहा है। लेकिन वो लोग महान क्यों बने? क्योंकि उन्होंने जीवन को एक मिशन की तरह जिया। दे लिव देयर लाइफ लाइक अ मिशन। कैसे जिया? उन्होंने जीवन के एक मिनट का, एक सेकंड का इस्तेमाल किया। दुनिया में 2 प्रकार के पागल होते हैं, एक होते हैं सेंसलेस पागल, एक होते हैं सेंसफुल पागल। जो सेंसलेस पागल होते हैं वो कपड़े फाड़ते हैं, गालियाँ देते हैं, पत्थर मारते हैं। जो सेंसफुल पागल होते हैं वो अपने उद्देश्य के लिए पागल होते हैं। याद रखना, होशियार लोग सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं, पागल लोग इतिहास बनाते हैं। याद रखना, मतलब क्लेवर पीपल कैन ओनली रीड द हिस्ट्री, क्रेजी पीपल कैन मेक द हिस्ट्री। पागल लोग कौन होते हैं? जो अपने उद्देश्य के पीछे पागल होते हैं, वो ओरिजिनल पागल होते हैं। जब आदमी बोलता है, जब तुम अपने उद्देश्य, देखो LIC वाला देखो पागल जैसा LIC करते रहता है, हम उसको पागल समझते हैं। लेकिन एक दिन वो अपना मुकाम हासिल करता है तो हम भी उसको सैल्यूट करते हैं। एक आदमी लड़का होता है, बिजनेस के लिए पागल होता है, रात दिन साइकिल से बिजनेस करता है, बाद में स्कूटर से बिजनेस करता है, बाद में 2 व्हीलर से बिजनेस करता है, बाद में धीरे धीरे 4 व्हीलर आती है, फिर देखते हैं कि उसका बड़ा मकान बनता है, उसके पास कार आती है, सब आता है। तो हम सिर्फ देखते रहते हैं, साला इसको तो पागल होता रे, अक्कल नव्हती काहीच, हा पाहणं पुढच्या पुढे पोचला, असं आपण म्हणतो नंतर। आणि जो आपण स्वतःला सॉफिस्टिकेट दाखवतो, आपण मग हसतो आपल्यावर, साला गलत झालं आपल्यासोबत, आपण गलत काम केलं। इट हैपन्स विथ अस, होता है ऐसे। समझ में आ रहा क्या? अरे समझ में आ रहा क्या? तो ये जो 25 साल है ना, वो सबको मिलते हैं, आपको भी मिले हैं। लेकिन उस कुछ लोगों ने 25 साल में भी एक प्रॉब्लम हो रहा है। कौन सा है बताओ तुमको? देखो, तुम्हारे पूरे लाइफ में तुमको कितने लोग पहचानते हैं? हाउ मेनी पीपल रिकॉग्नाइज यू इन योर होल लाइफ? अगर आप, हमने कैलकुलेशन किया,
मतलब मेरी लाइफ है समझो, पूरे लाइफ में मुझे 2000 लोग पहचानते होंगे जो मेरे नज़दीक के हैं, जिसके मैं शादी में जाता हूँ, जिसके मैं अलग अलग कार्यक्रम में जाता हूँ। अगर 2000 लोगों के कार्यक्रम में तुम जाते हो तो कितने दिन वेस्ट गए तुम्हारे? 2000 दिन गए। हमारे देश में शादी का फैड है, हमारे देश में इसका उत्सव उसका उत्सव, याचा बर्थडे त्याचा बर्थडे, याचा कार्यक्रम त्याचा सुरूच राहते। कामाचे कामं कमी राहते, लोकांना का मेन काम कमी करते, बिना कामावर जास्त करते। पाहून घ्या तुम्ही, ऑब्झर्व करा, स्टडी करा काही लोकांचा, डू द स्टडी ऑफ पीपल। तो 2000 दिन उसमें गए, एक साल होता है 365 दिन का, 2000 दिन गए यानी 5 साल गए, यानी हमको 20 साल मिल रहे हैं। ये सब टाइम का ही गणित है। हमको टाइम मैनेजमेंट समझा ही नहीं, जीवन का महत्व समझा ही नहीं, सक्सेस का महत्व समझा ही नहीं। हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते, हम अपने आप को मैनेज कर सकते। हमने टाइम के साथ अपने आप को मैनेज किया ही नहीं, इसीलिए जीवन में हम पीछे हैं। बराबर है। कोई स्टूडेंट बनता है तो बेस्ट स्टूडेंट बनो, कोई टीचर बनता है तो ऐसा टीचर बनो कि स्कूल वाले ने डिमांड करनी चाहिए कि नहीं यार, कोई ऐसे कारागिर है दुनिया में, कोई ऐसे इंजीनियर है कि कंपनी वाले की रेस लगती है कि ये इंजीनियर मेरे कंपनी में आना चाहिए, ये इंजीनियर मेरे कंपनी में आना चाहिए, ये इंजीनियर मेरे कंपनी में आना चाहिए। वो उस रेस में इतना बड़ा उसका डिमांड बढ़ता है कि उसका पैकेज करोड़ के ऊपर चला जाता है। सुंदर पिचाई का पैकेज उसके मालक से भी ज़्यादा है। मालक कम कमाता है, सुंदर पिचाई ज़्यादा कमाता है, क्योंकि अगर वो छोड़ के गया तो उसके मालक को मालूम है कि हमारा गूगल आप पीछे चला जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में, उनके पास ऐसी स्किल है। देखो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है जीवन में स्किल। जो भी लोग जीवन अच्छा जीते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छी लाइफ सेटल करते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ स्किल होती है। पढ़ाना एक स्किल है, भाषण देना एक स्किल है, सुनना भी एक स्किल है, बराबर है। संचालन करना एक स्किल है, कोई गाड़ी रिपेयर करना एक स्किल है, बिजनेस चलाना एक स्किल है, मैनेजमेंट करना एक स्किल है। समझ में आ रहा क्या? पढ़ाई करना भी एक स्किल है, कम समय में इफेक्टिव पढ़ाई करना, अच्छे परसेंटेज देना, ये भी एक स्किल है। समझ में आ रहा क्या? तो मैं ये 3 ब्लॉक हो गए, नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, इसमें तो पूरा टाइम पास है। इसमें टीवी देखना, बातें करना, ये करना, वो नॉट अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ बड़ा, ये 4 ब्लॉक में से मोस्टली हम लोग कौन से ब्लॉक में ज़्यादा समय बिताते हैं? दिमाग लगाओ, ये आप लोग समझा, ये आपको समझा, ये आपको समझा, ये आपको समझा। जो इसमें से आप लॉजिक लगाओ, आप कौन से ब्लॉक में ज़्यादा समय बिताते हो? कैन यू टेल मी? कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? हमारे देश के लोग इसमें ज़्यादा बिताते हैं, इसलिए हमारे देश के लोग आगे नहीं है। जिस दिन हमारे देश के लोग इस ब्लॉक में टाइम बिताएंगे ज़्यादा, वो सही में बहुत बड़े बनेंगे। नहीं बिताते, मुझे मालूम है। हमारे देश को आदत ही नहीं है। हमारे देश में बहुत ऐसे फालतू चीज़ें चल रही है, हमारे देश में इतने फालतू चीज़ें चल रही है। हमारे देश में आरोग्य का इशू कम है, एजुकेशन का इशू कम है, टेक्नोलॉजी का इशू कम है। और इशू कौन सा है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इशू है। कोई इशू है, लड़के उसमें इन्वॉल्व है, गांव वाले उसमें इन्वॉल्व है। अरे वो कोई इशू है क्या? मैं ये बताता हूँ, ये ज़मीन सबके लिए सरीकी है। ज़मीन सबके लिए सरीकी है। ये ज़मीन आपको फल दे रही है, फूल दे रही है, हवा दे रही है, सबको दे रही है। ज़मीन ने किसके साथ पार्शलिटी किया है क्या? दिस लैंड डिड नॉट डू पार्शलिटी विथ एनीबडी एल्स। आपको हवा मिल रही है, जितनी हवा तुमको मिल रही है उतनी मेरे को मिल रही है सांस लेने के लिए। जितने पेड़ पौधे फल फूल है, कोई भी पेड़ का फल मैं खा सकता हूँ, तुम भी खा सकते हो, बराबर है। ये ज़मीन आपको खाने के लिए अनाज दे रही है। अगर ज़मीन किसके साथ पार्शलिटी नहीं करती तो इंसान कौन होते यार? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करने वाले कुछ भी नहीं। इशू है, तुम्हारा समय बर्बाद करने के लिए इशू है वो, बराबर है। जिस ज़मीन पे हम रहते हैं उस ज़मीन का स्वाभिमान सबको होना चाहिए। वो इधर का है, उधर का, ये वो फालतू बातें। जिस देश में हम रहते हैं उस देश का स्वाभिमान इसलिए होना चाहिए कि हमारी माँ हमें सिर्फ 9 महीने 9 दिन पेट में पालती है, लेकिन ये भूतला, ये ज़मीन, ये देश, ये गाँव, ये नदियाँ, नाले, पानी, सरोवरे, ये हमें 80 साल तक, 90 साल तक, 100 साल तक पालती है। इसलिए ज़्यादा स्वाभिमान लोगों को ज़मीन का होता है, देश का होता है कि नहीं? वो स्वाभिमान हम सब लोग में होना चाहिए। लेकिन हमारा कीमती समय हमें कौन से ब्लॉक में बिताना चाहिए, ये अगर भारत वाले लोगों को समझ गया है ना, तो हमारा देश पीछे नहीं रहेगा। अगर भारत वाले लोगों को समझे नहीं समझे, लेकिन तुमको समझना जरूरी है, क्योंकि तुम देश का फ्यूचर हो। अब थोड़ा मैं आपको वर्ड फॉर्मेशन बताऊंगा, बस किंचित। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश प्रॉपर्ली, यू शुड हैव कमांड ऑन 2 थिंग, वर्ड फॉर्मेशन एंड लैंग्वेज फॉर्मेशन। ओके, अभी लैंग्वेज फॉर्मेशन क्या होता है और वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है?
ये फॉर्म नाम का वर्ड है, फॉर्म। फॉर्म मालूम है? फॉर्म का मतलब होता है तैयार नमूना या कॉपी। ये वर्ड से मैं 15 वर्ड बना सकता हूँ। हाउ कैन आई मेक 15 वर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड? देखो ये फॉर्म है, इसको इन लगाओ, इनफॉर्म हो गया। जानकारी देना, इनफॉर्म, इनफॉर्म, ये 3 फॉर्म है। इससे बनता वर्ड इंफॉर्मेशन, यानी जानकारी, ये नाउन फॉर्म है? समझेगा आपको? देखो ये फॉर्म वर्ड है, इसको तुम री लगाओ, प्रीफिक्स, रिफॉर्म हो गया। रिफॉर्म यानी क्या होता है? सुधारना करने। आई वॉन्ट टू रिफॉर्म माई कंट्री। महात्मा फुले वॉज द ग्रेट रिफॉर्मर। रिफॉर्म यानी सुधारना करने, रिफॉर्म, रिफॉर्म। इसका नाउन फॉर्म होता है रिफॉर्मेशन, सुधारना, ठीक है। इसका एजेंट नाउन होता है रिफॉर्मर, सुधारक होता। अब देखो ये वर्ड के 1 2 3 4 5 6 वर्ड बने। अब देखो फॉर्म वर्ड है, उसको तुम ATION लगाओ, ATION, ये हो गया फॉर्मेशन। ये नाउन फॉर्म है, इसका मतलब निर्मित होता है। फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बोलते ना, केमिकल की निर्मित बोलते हैं कि नहीं अपन? देखो ये फॉर्म वर्ड है, इसको तुम FORMATE करो, फॉर्मेट। मालूम मेरे पास फॉर्मेट है बोलते हैं, फॉर्मेट है मजकूर, बराबर है। यही फॉर्म वर्ड है, उसको तुम FORM फार्मूला करो, सूत्र होता है। समझा आपको? देखो एक वर्ड से कितने वर्ड बने, बस ये FORM फॉर्म नाम का वर्ड है, उससे फॉर्म, इनफॉर्म, रिफॉर्म, फॉर्मेट, फॉर्मेशन, फार्मूला, ठीक है। ऐसे FORM फॉर्म वर्ड है, समझो। देखो FORM, इधर कन लगाओ, कन्फर्म, लेकिन यहाँ आई लगता, कन्फर्म, निश्चित होना, बराबर है। देखो वर्ड कैसे बनते हैं, देखो वर्ड में अगर इफ यू वांट टू लर्न प्रॉपर इंग्लिश तो यू शुड हैव कलेक्शन ऑफ वर्ड्स पावर। देखो एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझो आपको अंग्रेजी बोलना है तो आपको नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, ये चारों का ज्ञान होना है। अब नाउन क्या है? देखो एक सक्सेस वर्ड है। सक्सेस यानी क्या होता है? कामयाबी। सक्सेस क्या है? नाउन है। जैसे मुझे बोलना है मुझे जीवन में कामयाबी मिली, आई गॉट सक्सेस इन माई लाइफ, तो यह आई सब्जेक्ट है, गॉट ये V2 है। सक्सेस के 5 वर्ड बनते हैं, देखो कैसे। इसका वर्ब है सक्सीड। सक्सीड मालूम है आपको? कामयाब होना, ये वर्ब है। सेकंड फॉर्म सक्सीडेड, थर्ड फॉर्म सक्सीड। ही सक्सीडेड इन हिज लाइफ, वो उसके जीवन में कामयाब हुआ, सिंपल पास्ट टेंस है। अब इससे वर्ड बनता है सक्सेसफुल। सक्सेसफुल क्या है? एडजेक्टिव। जैसा राम इज सक्सेसफुल, राम कैसा लड़का है? जो शब्द नाउन या ही इज सक्सेसफुल या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। समझा आपको? अगर मुझे ऐसा बोलना है आई स्टडीड, क्या? आई फॉट विथ एनिमी सक्सेसफुली, मैं दुश्मन से कामयाबी से लड़ा। लड़ा कैसे? सक्सेसफुली लड़ा, बराबर है। सक्सेसफुली क्या हुआ? एडवर्ब। जो शब्द वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं एडवर्ब। एक वर्ड देखो, जैसे करेज शब्द है। करेज यानी क्या होता है? हिम्मत। इसका वर्ब होता है प्रीफिक्स लग के एनकरेज। एनकरेज यानी क्या होता है? हिम्मत देना, है ना। आज आप करेज बोला, मेरे पास हिम्मत है। राम इज, ही एनकरेजेस मी, ही एनकरेजेस मी, वो मुझे हिम्मत देता है, बराबर है। और मैंने बोला राम इज करेजियस, राम कैसा है? हिम्मत वाला है, ये हो गया इसका एडजेक्टिव। यानी आई क्लाइम्ड हिल करेजियसली, मैं हिल चढ़ा। चढ़ा कैसे? करेजियसली चढ़ा, हो गया एडवर्ब। समझा आपको? और कुछ वर्ड ऐसे हैं दोस्तों, उसको प्रीफिक्स लगता है ईएन और वर्ब बनता है। जैसे स्लेव यानी गुलाम होता है, इसको वर्ब करो एनस्लेव, गुलाम करना। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एनस्लेव्ड, एनस्लेव्ड। स्लेवरी यानी गुलामी। समझेगा आपको? कोई भी वर्ड लो, ऐसे बहुत से वर्ड है। रिच, श्रीमंत होते हैं, इसका वर्ब बनाओ एनरिच, संपन्न करने, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है। सेकंड फॉर्म एनरिच, थर्ड फॉर्म एनरिच्ड। समझा? केज, केज यानी पिंजरा होता है, इसको एनकेज करो, में कैद करना होता है। सेकंड फॉर्म एनकेज, थर्ड फॉर्म यू एनकेज माई नॉलेज, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये हो गया प्रीफिक्स। इसका बनता है सफिक्स भी बनता है। इसका सफिक्स कैसे बनता है बताता देखो। जैसे लाइट यानी हल्का, लाइटन वर्ब है। ही लाइटन हिज वेट, उसने उसका वेट कम किया, है ना। ब्राइट, ब्राइटन। वीक, वीकन,
राम इज अ वीक पर्सन, वीक एडजेक्टिव है, यानी ही वीकन हिज स्ट्रेंथ, उसने उसके सामर्थ्य को कमजोर किया। ठीक है, डीप डीपन, रेड रेडन, रेड क्या है, नाउन है, रेड है लाल, उसका बनाना है वर्ब रेडन, लाल बुंद होने, जैसा हिज फेस रेडन बाय एंगर, इसका मतलब उसका चेहरा गुस्से से लाल बुंद हुआ, रेडन है लाल बुंद, सेकंड फॉर्म रेडन, थर्ड फॉर्म रेडन, ऐसा बनता है। डाई यानी मरना, सेकंड फॉर्म डाइड, थर्ड फॉर्म डाइड। डेथ यानी मृत्यु, नाउन फॉर्म है, डेड यानी मृत एडजेक्टिव है, और डेडन मृत घोषित करना, डेडन DADEN, ये हो गया वर्ब। सेकंड फॉर्म डेडन, थर्ड फॉर्म डेडन। तो आपको ऐसे माइक्रो चीजें मालूम होना, ब्लड रक्त, इसका कुछ ऐसे वर्ड है, उसका वर्ब बनता है ब्लेड, ब्लीड, ब्लीड यानी रक्त बहाने, सेकंड फॉर्म ब्लेड, थर्ड फॉर्म ब्लेड। ठीक है ना। फूल यानी मूर्ख, इसका वर्ब बनाना है बी फूल, मूर्ख बनने, मूर्ख होने, बी फूल, बी लगा, बी का बहुत से वर्ड ऐसे उसको ईएन लग के वर्ब बनता है, प्रीफिक्स में ईएन लग के वर्ब बनता है सफिक्स में। तो ऐसे माइक्रो चीजें होती है, वो हमको पढ़ना पड़ता है। उसमें क्या होना, पूरे टेंस परफेक्ट मालूम होना, और टेंस में वर्ड का इस्तेमाल करना परफेक्ट मालूम होना। जैसे आपको बोलना है, समझो दुकानदार खाने में मिलावट करता है, दुकानदार जेवणामध्ये मिलावट करतो, कसं होईल, हाउ कैन यू मेक इन इंग्लिश। आपको मालूम है दुकानदार, शॉपकीपर, अब आपकी समस्या जो है ये मिलावट करना वर्ड है ना, तो वो वर्ड आपको याद होना, तो उसके लिए वर्ड है अडल्टरेट, अडल्टरेट मिलावट करना, सेकंड फॉर्म अडल्टरेटेड, थर्ड अडल्टरेटेड, नाउन फॉर्म अडल्टरेशन, द शॉपकीपर अडल्टरेट्स इन फूड, ऐसा होगा, बराबर है ना। कुछ भी नहीं है अंग्रेजी में, एक है टेंस, एक है मोडल्स, एक है प्राइमरी वर्ब। अब व्हाट इज प्राइमरी वर्ब, देखो आई एम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं, तो यह एम है मेन वर्ब, एम क्या है मेन वर्ब। और अगर मैंने ऐसा बोला आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, इसका मतलब क्या होता है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो यह स्टडी मेन वर्ब है और एम हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जब इज एम आर वाज वर्ब, विल बी शैल बी विल बी शैल बी विल मॉडल है, बी ये नहीं क्या, हैव हैज हैड, डू डज डिड, ये प्राइमरी वर्ब है। प्राइमरी वर्ब क्यों है, क्योंकि जो वर्ब दो रोल प्ले करता है, एज अ मेन वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब, उसको हम प्राइमरी वर्ब बोलते हैं। समझे आपको, जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, ठीक है, लेकिन आई हैव अटेंडेड पार्टी, मैं पार्टी अटेंड कर चुका हूं। ठीक है, ये या अटेंड मेन वर्ब है, या हैव हेल्पिंग वर्ब है, या हैव मेन वर्ब है। समझा आपको, इस तरह से धीरे धीरे अंग्रेजी बनते हैं। अंग्रेजी में कुछ भी नहीं है, एक है डिटेल टेंस, बाद में है मोडल्स, बाद में है प्राइमरी वर्ब, बाद में है पैसिव वॉइस, बाद में है कंजक्शन, और उसके लिए जरूरी है वर्ड फॉर्मेशन। उसमें क्या होता है, आपको नाउन परफेक्ट मालूम होना, आपको एडजेक्टिव मालूम होना, एडवर्ब मालूम होना, वर्ब मालूम होना, ईमानदारी से। सभी चीज़ें 4 पर है, बाकी स्पार्टा स्पीक में 8 है, लेकिन 4 महत्वपूर्ण है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और एक ही शब्द के आपको बनाते आने को होना, एक ही शब्द के आपको वो सब चीज़ें बनाते आने को होना। अगर आपको रूट वर्ड मालूम हो गए, प्रीफिक्स सफिक्स, और लैंग्वेज कैसे तैयार होती है, ये जानकारी डिटेल आपको मिल गई, तो आपको अंग्रेजी बोलने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। नो वन कैन सीज यू फ्रॉम इंग्लिश कम्युनिकेशन। आई थिंक व्हाट एवर यू लिसन, इट वॉज ऑसम, इट वॉज वेरी गुड। सभी ने मुझे बहुत केयरफुली, अच्छा हैप्पी मूड से, एकदम पोलाइट मूड से, विवेकशील होके, प्रेम पूर्ण भावना से, बराबर है, और मस्त की सुना मुझे, मेरे भाषण का तुमने मस्त आनंद लिया, बराबर है। मैं आशा और अपेक्षा करता हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप कुछ चीज़ें जो मैंने फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, कुछ चीज़ें दिमाग में लो, उस पर रात को सोचो। सोचना शुरुआत होती है, सोचना क्या होती है, शुरुआत। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, अगर आपको जीवन में सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, आर्थिक क्रांति लाना है तो पहले वैचारिक क्रांति लाओ, बराबर है। वैचारिक क्रांति हर क्रांति का मूल है ना, इट इज अ फाउंडेशन ऑफ ऑल इवोल्यूशन। समझा आपको, इसलिए आप हर चीज पर सोचो। जानवर और मनुष्य में एक ही फर्क है, मनुष्य सोच सकता है, जानवर सोच नहीं सकता, बराबर है। मनुष्य के पास एक ही ब्रेन है, मनुष्य के पास 2 ब्रेन है, जानवर के पास 1 ब्रेन है। जानवर के पास सिर्फ सहज बुद्धि है, और मनुष्य के पास सहज बुद्धि है और विवेक बुद्धि है। विवेक बुद्धि के कारण वो सत्य और झूठ का फर्क कर सकता है।
विवेक बुद्धि के कारण वो मान सम्मान के बारे में सोच सकता है, रिस्पेक्ट के बारे में सोच सकता है। और मनुष्य का मूलभूत गरज अन्न वस्त्र निवारा सिर्फ नहीं है, वो जानवरों की है। हमारी मूलभूत गरज है मान सम्मान, रिस्पेक्ट, सम्मान। जिसका अंदर का रिस्पेक्ट मर गया है कोई इंसान नहीं है, जिसके अंदर का मान सम्मान मर गया है कोई इंसान नहीं है। इतना बोलते हुए मैं मेरे भाषा को पूर्ण विराम देता हूँ।